So we are seeing the pectoral girdle, that is also called shoulder girdle, क्योंकि ये आपका shoulder रहता है, right? It is made up of scapula and clavicle. This is the scapula. This is the acromion process of the clavicle, that is scapula. Continue with the, that is called the clavicle. So clavicle का आपका हो गया. It is a S-shaped bone. Medially it is attached to the sternum and laterally it is attached to the acromion process of the scapula. This scapula, it is also called the shoulder blade. और ये जो spine जैसा निकलता है कुछ तो भी उसमें से, that spine is called acromion process. Now if you see at the, there is a, at the junction of scapula and clavicle, at the junction of scapula and clavicle, now this is scapula, this is clavicle. So this is the acromion process of the scapula and this is the clavicle. At the junction of scapula and clavicle there is a cavity. ये जो आपको दिख रही है एक पूरी यहाँ से, this is the cavity, और ये पूरा आपका क्या हो गया, that is called scapula. This cavity, okay, this is the cavity. In this cavity the head of this bone, ये जो bone दिख रहा है आपको, और इस bone का ये क्या है, basically head है, ये उसका shaft है. The head of this bone, जो आपका ये bone है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, humerus. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, humerus. Okay, why it is called humerus? Humor यानी whenever you have a, when you laugh, humor, तो आपके shoulder थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो this is because of this upper limb bone, that is called humor or humerus bone. तो इसका जो head है वो इस cavity में fix हो जाता है, right? So this head is like ball and this is like socket. So this is a kind of ball and socket joint. कैसे ball and socket joint form होता, scapula और clavicle उस कैविटी का नाम है, that is called glenoid cavity. और इस glenoid cavity में head of humerus bone, कौन सा bone, head of humerus bone fix हो जाता है, and such type of joint is called, that is called the ball and socket joint. Okay, so इस joint को क्या बोलते हैं हम लोग, ball and socket joint. You can see here, look at there, this is the cavity which is in which the bone is going to be fixed. Okay, इस cavity को हम लोग क्या बोलते हैं, glenoid cavity. Okay, so ये हो गया आपका, that is called pectoral girdle, right? So you can see from the underside, ये दिख रहा है आपका clavicle है, और ये आपका जो है that is called which one, that is called scapula. और ये जो एक सर्कुलर कैविटी है जिसमें कौन सा बोन फिक्स हो रहा है, देखो ये बोन जो है, दिस इज विच बोन, दैट इज कॉल्ड द हेड. अब वो देखो वहां पर देर इज नो बोन. सो इफ देर इज नो बोन देर इज अ कैविटी विच इज फॉर्म बाय क्लेविकल and that is called scapula. This cavity is called which cavity, glenoid cavity. और इस glenoid cavity में कौन सा बोन फिक्स होता है, राइट? यू कैन सी हियर, दिस इज विच वन, योर glenoid cavity. और glenoid cavity में दैट इज द हेड ऑफ ह्यूमरस. ये कौन सा बोन है, दैट इज योर ह्यूमरस बोन इज गोइंग टू बी फिक्स. सो दिस इज योर विच girdle, that is called the pectoral girdle. Now after pectoral girdle, now we will see the function of pectoral girdle. What is the function of the pectoral girdle? It forms the joint with the arm bone. Pectoral girdle, they forms the, this pectoral girdle forms the joint with the arm bone, and that joint is called, that is called ball and socket joint. That joint is called ball and socket joint. Now second is pelvic girdle. Second girdle कौन सा है, pelvic girdle. पेल्विक गर्डल जैसे आपके पेक्टोरल गर्डल है, एक इधर से और एक दूसरा वो साइड से. ओके, सो कैन सी हियर, this is your pectoral girdle, और पीछे से this one is your which one, that is called the
pelvic girdle. This is your which one? That is called the pelvic girdle. Pelvic girdle, you can see they are 2 in number. Each bone, you can see this is one bone and this one is another bone. Each bone is formed by the fusion of 3 bone. Okay, ये साइड का एक, ये दूसरे साइड का एक पेल्विक गर्डल, पेल्विक बोन है. पेल्विक गर्डल का ये पेल्विक बोन है. ईच बोन, यू कैन सी दिस इज द वन बोन. This is the total one bone. This each one bone, that is pelvic bone, is formed by fusion of 3 bone. What are the names of these 3 bone? This is ilium, ischium, and this is pubis. Okay, what are the 3 bone which fuse to form one pelvic bone? That is ilium, ischium, and pubis. So ilium, ischium and pubis, they fuse together and they form one pelvic bone. क्या form करते हैं? They form one pelvic bone. Okay, so at the junction of this 3 bone, if you see here, so this is your which one? Ilium, this is your ischium, and this is the pubis. This is which one? That is called the pubis. So ilium, ischium, and this is the pubis. ये lateral view है और ये तुम्हारा anterior view है. Ilium, ischium, and this is the pubis. You can see here there is a cavity. There is a cavity. ये जो आपको कैविटी दिख रही है यहाँ पर, जैसे ऊपर थी उसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी और इसका नाम क्या है? एसिटाबुलर कैविटी. क्या नाम है इस कैविटी का? एसिटाबुलर कैविटी. ओके, सो ये तीनों, ये जो पेल्विक बोन है आपका, दिस पेल्विक बोन इज अ सिंगल बोन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. एक कैविटी तैयार करते हैं और उस कैविटी में जैसे ऊपर ह्यूमरस बोन था, तो यहाँ ये कौन सा बोन है? फीमर. ये कौन सा है? फीमर बोन. इस फीमर बोन का अगर आप देखोगे तो एक सर्कुलर हेड है यहाँ पर. दिस इज द सर्कुलर हेड ऑफ योर विच बोन, दैट इज कॉल्ड द फीमर बोन. वो हेड इस कैविटी में फिक्स हो जाता. सो इट इज जस्ट लाइक द बॉल and socket joint. This is just like the ball and socket joint. Okay, so this is your which cavity? Acetabular cavity. और वो कौन सी थी तुम्हारी? glenoid cavity. Okay, so I will show you here. Now you can see there is a cavity here और यही cavity में अगर आप ठीक से देखोगे there is a bone fix. Okay, so this is the bone. You can see यहाँ एक cavity में bone fix हो गया. ये साइड की अगर आप cavity देखोगे तो यहाँ पर भी एक bone fix हो जाएगा, right? And now anteriorly this pelvic girdle which is formed by ilium, ischium, pubis. ilium, ischium, pubis. यहाँ पर कौन सी है? ग्लिनोइड कैविटी. ये कैविटी कौन सी है? ग्लिनोइड कैविटी. और ये कौन सा है तुम्हारा? हेड ऑफ फीमर. यहाँ पर भी हेड ऑफ फीमर. दिस टू बोन दे आर जॉइन. ये पीछे से आते हैं. पीछे से किससे स्टार्ट होते हैं? इलियम अटैच टू द सैक्रम. ये आपका सैक्रम बोन. ये भी आपका कौन सा है? इलियम बोन. दिस इज द इशियम एंड दिस टू आर pubis bone. This pubis bone basically they join together by cartilaginous joint. Okay, they join together by the cartilaginous joint. इस joint को बोलते हैं pubic symphysis. इसको बोलते हैं pubic symphysis. What is the function of this pelvic girdle? Okay, ये आपके लेग मसल को या लेग बोन को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करती है, आर्टिकुलेशन को. ओके, एंड इन फीमेल हियर देयर इज अ यूट्रस बेबी और पार्चुरेशन ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस थ्रू द pelvic girdle. Okay, so this is all about your which one? That is called the
पेल्विक गर्डल, ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल। पहले जो हम लोगों ने देखा था दैट इज कॉल्ड द पेक्टोरल गर्डल। नाउ ये दोनों गर्डल होने के बाद नाउ वी विल सी द बोन ऑफ द लिम्ब, नाउ वी विल सी द बोन ऑफ द लिम्ब। ओके, व्हाट आर द वेरियस बोन ऑफ द लिम्ब, दैट इज द, ये हो गया आपके अपर लिम्ब के बोन और ये हो गया आपके लोअर लिम्ब के बोन। सो वी विल सी अपर लिम्ब फर्स्ट, इधर से 30, इधर से 30, इधर से 30 एंड इधर से 30। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए उसके नंबर। ओके, तो इनके नाम क्या है? This first bone, you can see it here, this is called humerus, it is called humerus. Okay, so first bone is called the humerus. Okay, so humerus में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, the joint between humerus and clavicle, it is clavicle, that is called the shoulder blade, or shoulder girdle, it is which type of joint? That is called the ball and socket joint, and that is called olecranon. So here these are the two another bone, these are the two another bone, you can see it here in case of the, this is the arm and this is your forearm. forearm में जो ये दोनों बोन है इसको बोलते हैं रेडियो अल्ना। इन दोनों का नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम है रेडियो अल्ना। ओके, और ये जो अल्ना बोन रहता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके पीछे एक प्रोसेस तैयार करता है, इसको बोलते हैं ओलिक्रिनॉन प्रोसेस, इसको बोलते हैं ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, दिस ओलिक्रिनॉन प्रोसेस जो पीछे रहेगा इट एक्ट एज अ हिंज जॉइंट। देखो आपका हाथ कितना भी ऊपर जाएगा लेकिन आप जब नीचे ले जा सकते हैं तो इसके सामने आप ले नहीं जा सकते, राइट, बिकॉज ये जो हिंज है ये ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है किसका? अल्ना का। दे एक्ट एज अ हिंज। ये आपका कौन सा बोन है? अल्ना बोन है और ये उसका ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है। क्या फंक्शन है उसका? हिंज करके एक्ट करता है, यानी इसके बाद आपका रोटेशन नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो आपको यूजुअली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंज जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस एंड विच बोन? इट इज द रेडियस बोन और अल्ना बोन। तो आपको लिखना है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? ये आपके हैंड का ह्यूमरस, आर्म का ह्यूमरस, ये फोर आर्म का रेडियो अल्ना। उसके बाद हम देखते हैं हैंड। दिस इज द हैंड पार्ट, इसको बोलते हैं हैंड बेसिकली। दिस इज द आर्म, दिस इज द हैंड बेसिकली, हैंड। ओके, नाउ वी विल सी द हैंड वन। हैंड में कौन से? ये क्या है आपका? आर्म है। ये क्या है आपका? फोर आर्म। और हम लोग देख रहे हैं अभी क्या? दैट इज एट द हैंड। इफ यू सी द हैंड, we have three most important part of the hand here. ये तो आपके रेडियो अल्ना हो गए, ये हो गया आपका रिस्ट, ये गया ये रिस्ट, देन उसके बाद पाम, एंड पाम के बाद उसका क्या आएगा आपका? रिस्ट। दिस इज द रिस्ट। रिस्ट के बाद क्या आएगा आपका? दैट इज द पाम। और ये क्या है आपके? फैलेंजेस। तो क्या क्या आएगा इसमें? रिस्ट आएंगे, पाम आएंगे और लास्ट में phalanges। लास्ट में क्या आएंगे? phalanges। ओके, सो रिस्ट कैन सी हियर, इन्होंने यहाँ पूरा एक बोन दिखाया, बट दिस इज नॉट वन बोन, देयर आर लाइक 8 small bone। हाउ मेनी बोन? लाइक देयर आर हाउ मेनी? 8 small bone in case of the wrist. They are arranged in 2 rows, एक upper rows and this one is in lower rows। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? These are called the basically the carpals। इसको बोलते हैं carpals। कितने कार्पल्स रहते हैं? 8। फिर उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, दिस इज द फिफ्थ वन। 1 2 3 4 5। सो कार्पल के सामने वाले मेटा कार्पल्स। ओके, ये कितने? 5 है। सो यू कैन सी हियर
wrist have 8 carpals, then palm have 5 metacarpals, and after metacarpals ये जो आपको छोटे छोटे दिखते हैं ये फिंगर में है, इसको बोलते phalanges, इसको बोलते बेसिकली द phalanges. See the bone of lower limb. We will see the bone of lower limb. सो बोन ऑफ लोअर लिम्ब उतने ही रहेंगे, दैट इज कितने 30 बोन्स रहते हैं. हम लोग देखते हैं 30 बोन्स कैसे, राइट. सो दी व्हाट आर द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब. सबसे पहले ऊपर का वी विल सी इट हियर. दिस इज द फर्स्ट बोन. उस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर. दे आर 1 इन नंबर. ओके, सो इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. याद रखना है आपको, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फीमर. इसको थाई बोन भी बोलते हैं. इट्स द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी. हेड, शाफ्ट, और इसको बोलते हैं कॉन्डाइल. इफ समबडी विल आस्क व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन, हेड, shaft, and these are the condyle. Okay, head fits into the acetabulum. This is the ball and socket joint. In case of your that is arm, that is upper limb, it is the head fixed into the socket, that is a glenoid cavity, जिसको हम लोग भी ball and socket joint बोलते हैं, ह्यूमरस का. तो एक फीमर हम लोग एक साइड के देख रहे हैं, राइट. एंड देन उसके नीचे ये दो रहेंगे, दैट इज द सेकेंड वन. दिस इज द थाई बोन. दिस इज द थाई बोन, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द फीमर. ओके, तो ये आपके नीचे के पैर के बोन है. दिस इज द थाई बोन. ओके, उसके बाद आएंगे ये नीचे के आपके दो बोन रहेंगे, राइट. सो कैन सी इट हियर. ये आपके दो बोन है, दैट इज टिबिया एंड फिब्यूला. This is called tibia and fibula. These are the leg bone basically. This is not thigh bone. These are basically the leg bone. Tibia is like basically the long and thick. Tibia is thicker. ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है, that is called the tibia. That is called the tibia. और जो thin वाला लग रहा है आपको, that is called, you can see, I will just make it bigger. So this is the tibia and this is your which one, that is called the fibula. This is which one, that is called the fibula. Okay, so this is your which one, that is called the bone. Now if you see in front here, can you see here, these are the two cap here. So in each leg there is a one bone, that is called patella. Patella को हम लोग क्या बोलते हैं, knee cap. You can see and you can feel your, that is called the knee. वहाँ आपको एक cap दिखेंगी, that is called the patella bone, that is called the knee cap. Okay, so this is very important. This is one of the kind of which bone हम लोगों ने देखा था, sesamoid bone. कैसा bone है ये, that is the sesamoid bone. Okay, so जैसे आपका ये एक्सटेंशन नहीं होने देता आपका ओलिक्रोनल प्रोसेस, ओके, आपके अल्ना का, तो वैसे ही ये पटेला आपके नी का एक पर्टिकुलर होने के बाद एक्सटेंशन होने देता क्या, नहीं, नी वहीं आके रुक जाता, उसके सामने जाता क्या, नो. सो दैट इज द पटेला. फिर देन फुट वाले बोन, जैसे हैंड वाले बोन थे तो वैसे फुट वाले बोन है, हम लोग देखते हैं, दीज आर द फुट बोन. These are basically the foot bone. So same, सबसे पहले रहेंगे छोटे छोटे वाले ज्वाइंट पे, एंकल ज्वाइंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर बोलते थे कार्पल, नीचे बोलते टार्सल. नीचे क्या बोलते हैं उन लोगों को, दैट इज कॉल्ड द टार्सल. लेकिन कार्पल 8 थे, लेकिन टार्सल कितने हैं, 7. देयर आर 7 टार्सल. ओके, एंड द हील बोन, जो सबसे बड़ा ये जो आपका हील बोन है, टार्सल में कई एक, जिसको हम लोग हील बोन बोलते हैं, इस हील बोन का नाम है, ओके, कैल्केनियम. टार्सल में के एक जो हील बोन बनाता है, जिसका नाम है कैल्केनियम. द नेम ऑफ टार्सल बोन, दैट इज कॉल्ड कैल्केनियम. ओके, उसके बाद आपके ये हो गए आपके पूरे, दैट इज दिस इज एंड दिस ऑल, दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर फुट बोन. फिर ये 5 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी है 1 2 3 4 5. दे आर मेटाटार्सल. दीज आर बेसिकली मेटाटार्सल. दे आर फाइन नंबर, जैसे आपके कार्पल 5 थे वैसे मेटाटार्सल. और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैलेंजेस, जो छोटे छोटे रहेंगे, राइट. सो दीज आर द सिंगल स्मॉल स्मॉल, ओके, उसको बोलते हैं, दैट इज द फैलेंजेस. फैलेंजेस जैसे सेम है तुम्हारे, जैसे तुम्हारे इधर थे, दैट इज इन केस ऑफ हैंड, वैसे यहाँ पर भी थंब में 2, बाकी 4 इसमें 3 3 3
तीन रहेंगे, राइट. सो दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द phalanges. ओके, सो इफ यू टोटल इट, फीमर 1, टिबिया फिबुला 2, हम लोग एक बार पूरा कैलकुलेट करते हैं अपर लिम और लोअर लिम के. इट इज 30, इट इज यूजुअली द 30. अपर लिम, लोअर लिम. सो सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमरस रहेगा एक, और यहाँ पर रहेगा फीमर एक. उसके बाद फोराम में यहाँ रहेगा रेडियो अल्ना 2, यहाँ पर रहेगा 2, टिबिया फिब्यूला. उसके बाद रिस्ट जॉइंट में जो आपके कार्पल्स है वो रहेंगे 8, और यहाँ पर एंकल जॉइंट में जो टार्सल है वो रहेंगे नॉट 8, 7. उसके बाद मेटाकार्पल दोनों जगह 5, यहाँ मेटाटार्सल 5. उसके बाद फैलेंजेस 2, 3 + 3 + 3 + 3, okay, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So I will just write down 14 here and 14 here. So if you make total here, 14 and 1, 15, okay, 15 and 10, okay, so 15 and 10, 25 and 5, 30. Here it is like 14 and 1, 15, 15, it is 29, it is 20. Where is 1? So we forgot to write this one, that is called patella. So 29 plus 1 patella, it is 30. So 30 here, 30 here, 30 on this side and 30 on this side. These are total your, that is called forelimb bones and hind limb bone. Okay, so this is all about your which one, appendicular skeleton. तो गर्डल भी हो गया आपके, और उसके बाद आपका क्या हो गया, that is called the limb bone भी हो गए. So this is basically your which one, that is called the locomotion and movement वाला कौन सा पार्ट है आपका, these are the skeleton part. Okay.